welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Aisha. Who happens to be a content creator as well. How are you, Aisha? I'm really good. Thank you. Thank you so much for having me here. No, you're most welcome. Can you tell us what all are you doing right now so that we can start from there? Right now I am a content creator. I do lifestyle and travel mostly. And then apart from that, I'm trying to get consistent on YouTube. And I also run like a venture. It's called Digital A. I give coaching to small blogs and businesses about how to be successful on Instagram and content creation and hashtag strategy and all of that. So most of your content is on Instagram, no? Mostly, yes. Okay, and what are you doing on YouTube or trying to do on YouTube, as you said? I want to make more videos, basically like vlogs, वगैरह, hijab tutorials, but mostly travel content. But I'm trying to get consistent. क्योंकि घर में सारे दिन मैं इतनी lazy हूँ, पड़ी रहती हूँ, तो फिर travel भी कम हो रहा होता है, तो इसलिए vlogs भी कम बन रहे होते हैं. But like, you're also doing a lot now. Like you're doing Instagram content and you're doing Digital A. So, when did you start blogging and how did it happen? Because pehle you were doing photography as well. Yeah. So how did it lead up to this? So basically, when I was in my master's, I was in NUST. So I joined this studio called Konsa One Studios, and I was like the communication manager, and then I later got promoted to the managing director. And there I was like handling a lot of सारे जो clients होते हैं उनकी communication and teams की communication, and साथ साथ I was doing wedding photography. क्योंकि I was in production का master, तो it was something that I wanted to do. तो like वो करते करते like when I started Instagram, पाकिस्तान में बड़ा नया trend आया था, तो हर जगह आई थॉट कि जैसे फेसबुक वगैरह पे हर कोई अपनी पर्सनल तस्वीरें लगाता है लेकिन वो बंद होती हैं सब. सो लाइक ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव आर लाइक फॉर फ्रेंड्स. सो आई डिडंट वांट अनदर प्लेटफॉर्म जो सिर्फ फ्रेंड्स के लिए होगा. तो आई लाइक मेड इट पब्लिक फ्रॉम द स्टार्ट एंड आई पोस्टेड सिर्फ अपनी फोटोग्राफी और वो वाली चीज़ें मैं लगाती थी. तो माई फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स वर जस्ट बिकॉज ऑफ माई फोटोग्राफी. सही. एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई वाज डूइंग लाइफस्टाइल शूट्स एंड वेडिंग फोटोग्राफी, तो जो लाइट चेक वाले पिक्चर्स होती थी, तो आई पोस्टेड अ फ्यू ऑफ दोज एंड दे वेंट लाइक रियली वायरल सॉर्ट ऑफ उस तरह से ना, क्योंकि पीपल रिलेटेड टू इट मच अ लॉट. आई मीन कि हिजाब करती है, यू नो, वेडिंग फोटोग्राफी भी करती है, ट्रैवल भी कर रही है, इंडिपेंडेंट भी है थोड़ी बहुत. And you know, people were like more interested in my life than my photography after that. So uske baad phir I started posting more pictures. I started talking about my life more, and then it turned into a lifestyle blog before I knew it. मुझे तब पता भी नहीं था कि it would like a viable career choice. Now before some brand reached out to me and they were like कि हमने आपको कुछ भेजना है, तो like ये कुछ हो सकता है. This is also like a profession or like, you know, something you can do for a living. Yeah. So I guess sometimes, you know, when you do things, you realize along the way that you have like a skill or like some like potential in doing it, and then you also realize that, oh, there's something I can do. Yeah, exactly. Like, you know. Also I think a lot of the times, I think मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था कि you do something and then it's people who sort of make you realize they like what you're doing, you know, and then they want more, and then you're like, okay, maybe I can give that to them. Talk about it more. I think maybe people saw that aspirational value in what you were doing. Yeah, maybe. That they wanted to aspire to be, because at the end of the day, blogging mein hi hota na, you show people how you live, your lifestyle, or what you like, or what you prefer, and then maybe some people derive that aspirational value from it कि अच्छा हमने भी ऐसा होना है, तो हमने इससे ऐसा सीखना है. सही. And how long ago was this? This was, I graduated from NUST in 2016. तो उस टाइम पे मैं I think 6 महीने हो चुके थे मैं Konsa One में काम कर रही थी. तो it was I think probably 2015 में मैंने start किया होगा Instagram, जो photography में लगाती थी. तो it was mostly around that time. Okay. And since we're talking about content, your content I know has really evolved over the years, you know, from the sort of pictures that you were uploading before or the things that you were talking about. And I think as a creator, you have explored a lot. Yeah. You know, sometimes you did, pehle bhi you did YouTube, I think, at one point.
या क्योंकि जब वो पाकिस्तान में आई फेल्ट कि ट्रेंड जो है वो वीडियोस की तरफ जा रहा है. अब तो फुल ब्लोन आ गया है ट्रेंड ना. उस टाइम पे आई फेल्ट कि यू नो द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स मोर वीडियो साइड. तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब के आई शुड गेट अ हेड्स अप. लेकिन वो ये है कि मतलब साल बाद फिर आई गॉट सो लेजी कि उसके बाद जब सब करना शुरू हो गया तो अब मैं बैठी हुई हूँ अच्छा यूट्यूब भी करना चाहिए. बट शुरू में आई वॉज रियली इन टू इट. फॉर लाइक फर्स्ट ईयर आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट. आई वॉज पोस्टिंग 2 वीडियोज़ अ वीक एंड उसी से फिर मेरे जो फॉलोअर्स बने थे सब्सक्राइबर्स वो बन गए. उसके बाद फिर वो छोड़ दिया, बस वो रुक गया. असल में it takes a lot of work and I also feel that there is only up until one point where you can do things completely by yourself. It's a funny thing for me because when I was working in a studio na, so I was in a studio basically. We had editors, we had photographers. All I had to do was like get ready and then go to the office ke meri tasveer le do, kisi ko bhi keh do. You know, there were everywhere there were photographers and editors. So मेरे लिए बड़ा आसान था काम करना. I had a team when no one else had a team. And then later on when I got divorced and I stopped working in Consumer Studio because I was running it with my husband. So I lost the team and I had to start from the beginning where I had to do everything myself. And us time tak everyone else had built teams. And I was like, I said, backstep liya. It was like a very hard thing for me as well. Ki, I've lost the जो team वाला aspect है वो मेरा ख़त्म हो गया है. Usually people start from the beginning and they build up. And I was like, I started from the top and then I stepped down to working only with myself. No, but पता है क्या, I get what you're saying, but I feel that before you have a team to work with, it's really important to do everything yourself as well. It is. It's a process, na? I think like one will only work really well with the team is once they've done everything themselves and they know that process. And और एक अच्छी बात होती है to know most of the stuff, and then you can have a team that can help you build you more, help you do even better. So inshallah you'll get there and have a team. Right now like I'm building towards it. I have a photographer jo that's good. I have a manager and then like I'm building it up slowly, but it's a good process for me as well क्योंकि lots of things जो कि पहले बड़ी आसान थी मेरे, अब now I have to like get into the nitty gritty of it and I learn a lot. I learned more through doing it myself. Exactly. So once you've been through the process you know everything yourself. So you mentioned that you had a divorce, okay? And I've also noticed, considering we were talking about your content and then you brought up your divorce, I've noticed that you do talk about your divorce and it's just something that is so rare. Like you don't see people talking about that, obviously because divorce वैसे भी stigmatized है. उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है और इतना acceptable भी नहीं है. So tell me about that. Tell us a little bit about how you did that and why you did that. So why did I talk about it? Then we'll get to the divorce a bit. So basically when I got divorced now, I didn't tell anyone for like a really long time. And I just like archived all the pictures and मैं बस चुप हो गई थी उस बारे में कि बस हो गया है. Because I was like in a very dark place as well. We'll talk about that later. तो मैं फिर बस बिल्कुल चुप हो गई. Then people kept asking क्योंकि it was like a very public thing कि भाई शादी हुई हुई है, साथ काम करते हैं. तो people kept asking me and I wasn't ready to answer on any of those questions. But later on people, obviously लोग बड़े चालाक होते हैं तो वो मुझे कहते थे ना कि I'm getting divorced as well, आप प्लीज़ बात करें, वी वांट समवन टू इंस्पायर अस के. और मुझे बड़ी स्केरी किस्म की स्टोरीज वगैरह लोग भेज रहे होते थे कभी कभार जस्ट टू आस्क मी फॉर सम सपोर्ट कि टेल अस कि you've gone through this as well so we feel a little bit better. So I came up with the divorce series. सबसे पहले I posted my wedding pictures. That was like such a hype कि शादी के बाद divorce होने के बाद I posted my wedding pictures because I came across them again and I was like यार मैं इतनी प्यारी लग रही थी मतलब मैंने कभी लगाई भी नहीं है and they're wasted now. I can't post them. Like इतनी मैं अच्छी लग रही थी, इतना मैं तैयार हुई थी तो and then I was like why not? I look pretty. I spent so much time getting ready. Why not? Even पैसे भी दिए थे मैंने makeup. And so what? क्या अगर divorce हो गई? That doesn't mean you can't put up those pictures. I know. So I posted like 3 pictures मेहंदी की और इसकी सारी and I like posted the caption as well कि even if it didn't work out I still look good. Sweet. So उससे फिर start हो गया ना. People were like talk more. So I came up with the divorce series where I talked about each factor that people go through, like the rumors
part, and then feeling very lonely part, and then feeling not enough part. And wo sare kya like made a little episodes out of everything. They weren't about me. They were just about things that everyone goes through after divorce in Pakistan mostly. And it got a really good response. People feel related to it, and a lot of people reached out to me. So I was like really glad that I did it, because it gave hope to a lot of people in Pakistan ke, you know, it's okay, life goes on, ho jata hai, it's okay. मिट्टी पाओ. एंड ऑल्सो आई थिंक समटाइम्स पता है क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास वो अल्फाज ही नहीं होते जो आप उनको फिर दे देते हो. Yeah. You know, by you talking about the experience, they feel like, oh, somebody finally spoke what was in my heart. Exactly. So wo I think it's a really good feeling. Like if I'm on Instagram and if I see something or read something that is relatable, so it makes me feel better, makes you feel less lonely. Yeah, exactly. So you played that part for a lot of people, I guess. Yeah, exactly. I felt like it was needed. कोई बात नहीं करता. A lot of people I know, a lot of bloggers वगैरह, and a lot of celebrities, they go through this but they never talk about it. या तो बात करेंगे तो it turns into a war. मतलब no one talks about it in a way कि यार it's okay, it happened, your life doesn't end. पर पाकिस्तान में ज़्यादातर औरतों को यही बताया जाता है कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो start हो गई, and divorce is like, you know, you're dead, you might as well just die now. So I thought that someone should say this कि it's okay, like life goes on. एक toxic relationship में या एक abusive relationship में या आप किसी भी वजह से खुश नहीं हो तो छोड़ दो, like move on with your life ना. So you said that a lot of people don't talk about it, right? Do you think it's because, I mean, I'm sure it takes a lot of courage. It does. Like when I was shooting the divorce episodes, it was after like 1.5 साल तो गुजर चुका था. I was very happy. खुश थी. मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं वो रोने धोने वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी एक्टिंग करके बनाती. मस्कारा लगा के खुद उसको बहा के लाइक मतलब देयर वाज नो मतलब पीपल थॉट कि शायद मैं अभी भी उसी फेज में हूँ. बट आई हैड टू क्लेरिफाई इट अगैन एंड अगैन कि मैं नहीं हूँ उस फेज में. दिस इज जस्ट फॉर यू गाइज. बट एट द सेम टाइम शूटिंग देम वाज हार्ड. Of course it's triggering. या बिकॉज आई हैड टू लाइक वो जो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के मुझे वो अपने सोचना पड़ता था कि व्हाट वाज दैट फैक्टर जो उस टाइम पे मुझे बहुत चुभता था. एंड आई हैड टू लाइक think about it again, go through that whole process again. So it was hard shooting them, it was. But I had to do it. It was something that was right. So going through the divorce itself, I think, how did you make that decision? I mean, obviously I'm not going to ask you why it happened or what happened between you and your husband, ex-husband, but like making that decision, because I know that a lot of girls find it really hard to make that decision. How did you do it? So basically when I was married, it was like the, you know, because I knew why I got married. Like मुझे कोई सारी उम्र से शादी करने का शौक नहीं था. Like I wasn't one of those people जो सारी उम्र शादी के बारे में सोचते हैं. I wasn't one of those people. I thought कि कोई ठीक मिलेगा, someone who's right for me, I will get married. But other than that मैं अकेली भी बड़ी खुश हूँ. तो when he came along, I still know why I married him. Like, and those are still the things that I want in a guy. He had those things, but there was also a lot of things जो कि ठीक नहीं थी, which infidelity was a huge part of it. Okay. So it kept happening again and again. Like एक दफ़ा मतलब we fight and we just like make up and he wouldn't do it again. And then 6 months down the line he does it again. And then I didn't tell anyone क्योंकि मैंने खुद की थी शादी. तो I didn't tell anyone कि क्या चल रहा है, because I was scared on some level. People will be like, we told you so. We told you so. Ashamed or embarrassment भी, I guess. Exactly. हमने तो तुम्हें कहा था सोच लो and इस तरह की चीज़ें ना. तो I was very scared. I didn't tell anyone, and nor my family, nor my friends. No one knew. They could see it in me कि I'm not happy, something is wrong, but I was used to be like नहीं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ. Because मेरे दिमाग में वो mantra सा, जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब जा रही होती है ना, you don't want to see them, and you don't want to confront them. You pick one good thing and then you chant it like a mantra. Yeah, you hold on to it. Because I always like my freedom. I'm an independent person. So I love that part कि वो मुझे ज़्यादा रोकता टाकता नहीं है.
एंड आई लाइक दैट इन गाइज. मुझे नहीं ज़्यादा रोकने टाकने वाले लड़के पसंद. एंड मैंने वो पकड़ी हुई थी, यू नो. मतलब अम्मी पूछती थी, कोई पूछता था कि यू नॉट हैप्पी, तुम्हारी आंखों में खुशी नज़र नहीं आती है. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, नहीं देखे मैं जहाँ मर्जी जाती हूँ, मैं जो मर्जी करती हूँ. लाइक यू नो, आई हैव फ्रीडम, आई हैव अ कार, आई गो एवरीवेयर, आई मीट माई फ्रेंड्स. लाइक मैं शादी के बाद तो लोग अपने फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर पे नहीं जा सकते. देखे मैं तो फरिया की तरफ रहने भी चाहती हूँ. लाइक आई हैड अ mantra कि बस मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. एंड देन द थर्ड टाइम इट हैपेंड, आई promised myself, I was like, I clearly do not have the guts to, you know, do something about it. I need external force, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार ठीक करने की, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है. थर्ड टाइम्स द चार्म, आई गेस. तो आई प्रॉमिस माई सेल्फ, इफ इट हैपन्स अगैन आई विल टेल समवन. मैं बताऊँगी किसी को. एंड मैंने सोचना नहीं है कि नहीं बताना चाहिए. गालियाँ देते हैं, आगे से मुझे डांटते हैं, सो बी इट. And the fourth time it happened, he wanted out as well. उस time तक he wasn't into it anymore. He was like, नहीं रहना ही नहीं है साथ. And I didn't know the reason. And then I was like, I need to find the reason. I found it. It was infidelity. And then I called my best friend. And I was like, this has been going on. And मैंने पूछा नहीं कि मुझे क्या करूँ. I just told her everything. I told her everything. So she was like, are you crazy? मैं गाली दे सकती हूँ? Yeah. She was like, are you fucking kidding me? You need to get out. And then I called my brother. And he was again, are you fucking kidding me? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम निकलो वहाँ से. And I was like, I don't know, is it the right choice निकलना? क्योंकि यार पाकिस्तान में तो ये कहते हैं वहाँ से लाश ही निकलेगी, you know. And मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि यार शादी कर लिया तो बस that's for life. And they were like, नहीं, you need to get out. We didn't tell my mom. Because she was going on Umrah, so I didn't want to ruin it for her. We didn't tell her. So when she came back, उस टाइम तक हमने छुपाया हुआ था. फॉर अ होल मंथ हमने छुपाया हुआ था कि आई हैव मूव्ड बैक. You had moved back. अच्छा. हाँ, तो गलत बोला मैंने. तो मैं जिस दिन मामा वापस आई हैं उस दिन आई डोंट नो हाउ शी फाउंड आउट, क्योंकि लगेज सब कुछ छुपा दिया था हमने, सब कुछ छुपा दिया था. तो शी लुक्ड एट मी एंड शी बोली लाइक, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, रेडी हो जाओ मुझे बताने के लिए क्या चल रहा है. How did she know this motherly instinct? What is it? फिर I told her, मैंने कहा ये हुआ है, मतलब मैं वापस आ गई हूँ, like you know, now I'll see कि क्या करना है आगे. तो my mom was just, which was very surprising for me coming from a desi mom. She was like, देखो, you can either cry about it all your life, ये मेरे साथ हो गया है, or you can just think it was a mistake and move on with your life. I was like, wow, desi mom wisdom. That is not a desi mom wisdom. क्योंकि usually नहीं करते support. Usually नहीं करते, हाँ. My family was alhamdulillah very supportive. पता है क्या, that's true. But also a lot of the times it is that noise from outside कि we paint our parents with the same brush as well. Maybe they're not like that. Maybe a lot of people don't have parents like that, but उनको शायद कभी उस तरह बताया नहीं गया, या उनको उस तरह का सपोर्ट महसूस नहीं हुआ कि उनको लगा कि वो चीज़ ऐसी नहीं कर सकते. बट देयर पेरेंट्स डोंट फील लाइक दैट, यू नो. कभी कभार पाकिस्तान है, यू नो, मतलब एंड पे है तो पाकिस्तान में शी इज अ मॉम इन पाकिस्तान, सो यू टेंड टू अज्यूम कि वो भी ऐसे ही होंगे. बट शी वाज वेरी सपोर्टिव, लाइक माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव एंड माय फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव. तो आई थिंक मैं जितना जल्दी उस चीज़ से निकली हूँ, दैट वाज बिकॉज आई हैड अ वेरी सपोर्टिव सर्कल एंड एवरीवन वाज लाइक, इट्स ओके, इट हैपेंड, इट्स ओके, you're fine. तुम ठीक हो. Were you afraid of the stigma though? I wasn't afraid of the stigma. क्योंकि I've never been the sort of person to be afraid about what people say in the first place. taboo की बात नहीं करनी है, ये बात मतलब इस तरह की. I was never afraid of these things. तो मुझे खुद डर नहीं था, लेकिन वो फिर भी बुरा लगता है ना जब आपको कोई आके कोई ऐसी बात कर दे. You know, I remember this random someone came and they were like, if you तुम्हारे हकूक तो पूरे हो रहे थे तो तुम वहीं रहती. Like, you know, in the end तो आना तो तुम्हारे पास ही था उसने वापस. I was like, wait a minute. Wait a minute. If I had done the same thing, आप भी उसको जाके यही बोलती? And I said it. I was like, आप उसको जाके यही बोलती? Oh, you said it. That's good. क्योंकि I lost it. I was like, ये किस किस्म की वो sexist बात है ना? क्योंकि then she was like, नहीं वो तो मर्द है. I was like, how does that make sense? उसके हकूक मैं भी पूरे कर रही थी. But if I do something like that, no way in hell a guy would be okay with it. No way in hell anyone would be okay with in Pakistan, you know. But उसके बाद I feel like I lose my respect for someone
when I see them cheating on someone. Even if they're girlfriend, fiance, कुछ भी हो ना, I mentally lose all respect for that person. अब मेरे से नहीं होता. Like पहले होता ना बंदा थोड़ा शुगर में किसी की बात सुनी, and now मैं किसी की सुनी सुनाई बात पे भी ना I lose all respect. I'm like that person is not a good person. I don't know. It's like a after effects of You've been there, so you know how important loyalty is. It's not माइंड just में ये नहीं आता कि ओ यू नो इट्स अच्छा, क्योंकि गाइज लाइक होता है ना बातें वगैरह करते हैं 2 टाइम करने की, और ये 2 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं, दोनों को पता नहीं चला, दे पुट इट इन अ फनी सिचुएशन कि यू नो फंसने वाला था, फंसा नहीं, सच अ हॉट शॉट आई एम, एंड ऑल आई कैन थिंक इज कि व्हेन आइदर ऑफ दोज वुमेन फाइंड आउट हाउ दे विल फील, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट, आई कैन इंस्टेंटली फील व्हाट दे विल फील, एंड आई एम लाइक आई डोंट फाइंड दिस फनी एनीमोर, आई डोंट. yeah, I get it. Sahi. So, what are some things you feel that you've learned from this and that you would like other girls to know who are in the same situation or could potentially be in the same situation? I feel like a lot of people need to realize that कि जब आपका relationship होता है ना, it's good to give your 100%. मतलब a lot of people, जैसे मैंने खुद personal life वगैरह में देखा है, people spend पता नहीं सालों गुजार देंगे कि 6 साल बाद ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, हर चीज़ लड़की ठीक हो जाएगी, मतलब it goes either way ना, तो मतलब यही सोचते रह जाते हैं. And then I keep thinking कि give yourself some time, like it's a week, a month, a year, जितना भी टाइम आपने देना है उस टाइम में give your 100%, लेकिन उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता ना तो move out, like just move, get away from it, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना, like लेकिन वो एक टाइम फ्रेम अपने आप को देना, वो I feel like it's very important कि आप अपने आप को हफ्ता दो, महीना दो, जितना भी आपने टाइम देना है दो, and उसमें give it your all, give it your all to fix it, and if still it doesn't work out, there's no point anymore. वो लोग अपना कोई टाइम नहीं देते हैं, लोग people are either like फौरन छोड़ देंगे या सारी उम्र बैठे रहेंगे. So why do you think people should give that time? Because there are no regrets later on. Yeah, I wanted you to say that. There are no regrets later on कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता, क्योंकि now I gave myself 2 years for crying out It makes you, I think, very confident and sure in your decision then. कि मैंने 100% दिया है, and now it's the time to move on, क्योंकि नहीं चल रहा, अब नहीं चल रहा, क्योंकि लोगों ने तो यही कहना है कि बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, बेटा बात कर लेते हैं, बेटा अब्बा बात कर लेंगे, बेटा भाई बात कर लेंगे, like people say this kind of thing, तो you need to be sure yourself कि ये मुझे करना है अब, तो there has to be a no regrets वाली चीज़. हाँ, and before you take that step you are sure कि अच्छा हाँ मैंने अपना सब कुछ किया था, because I feel it would really suck to make that decision and then later feel like शायद मेरे में भी कोई गलती थी और मैंने शायद खुद सही से नहीं किया. That's the worst part. That's the worst part. Like for me, I regret not taking an action sooner. Like forgiving someone 4 times, that's मतलब 1 time is a mistake, 2 times is a mistake. वो la phrase होती है ना, वो shame on first time something, shame on you, and the 3rd time shame on me. So I was like, I gave it too much time. I should have told someone sooner. I didn't trust anyone उस sense में. I was like कि लोग कहेंगे तुमने खुद ही की थी, तो you know it's your fault. You did it yourself. And I was like ये मुझे ये नहीं सुना था. No one said it to me. वो अपने दिमाग में ही बस था कि मुझे कोई ये ना कह दे we told you so. अच्छा, and what did you sort of, I don't know if you did or not, but did you have to like face something, some sort of pressures from the society or whatever because of the divorce, or hear things, or I don't know? It's going to be a little controversial to say it, not controversial, but this is something that all the divorced women know, okay, but not the rest of the society knows. Okay. And that's, people look at you differently. Acha. Guys start to think you're easy because you're divorced. Okay. And they would hit on you left, right, and center. Everyone. Okay. Women start to feel like they need to keep you away from their husbands because Why? their husbands might. Like it didn't happen to me a lot, but I have friends who are divorced as well, and it happens a lot. Like
लड़कियां थोड़ी अजीब हो जाएंगी कि हमारे हस्बैंड पे डोरे ना डाले, लड़के हो जाएंगे कि शी इज़ प्रॉब्ली ईजी, यू नो, शी इज़ लाइक शी वाज मैरिड सो शी प्रॉब्ली नॉट अ वर्जिन एनी मोर, सो शी इज़ अ ईजी कैच. तो मतलब वो आपको देखना अजीब तरह शुरू हो जाते हैं लड़की, एंड इसीलिए फिर वो सोसाइटी भी फ़ौरन इसलिए हो जाती है आई थिंक इसी को देख के कि दोबारा शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो, दोबारा शादी करो, यू नो, बच्चा भी नहीं है, शादी कर लो. आई थिंक वो भी इसीलिए प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है सोसाइटी भी कि इस तरह की चीज़ों में ना फंस जाए. बट दिस people start to look at you differently and I didn't like that because I am not that old कि मेरी लाइफ वहाँ रुक गई हो, यू नो, इट्स नॉट लाइक आई एम 67 years old कि भाई अब मैं जाऊँ किधर. आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन. आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्हिच वाज अ ह्यूज फैक्टर इन मी being able to make that decision. तो आई फील लाइक कि people need to see कि it's fine, it doesn't change you as a person. एक label लग गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको ये like I haven't sprouted antlers or something. Okay, so basically what you're saying is that at some level for some people they started defining you because of your divorce. कि divorced है तो ये ऐसी है. It's like a label, it's like a stereotyping. It is like my mom has been very supportive, my friends have been very supportive, but my nanu comes from a very older generation where there wasn't any divorce, you know. मार भी खाते रहो सारी उम्र तो वहीं बैठोगे. तो she comes from a very different generation, so it was very hard for her to understand कि ये क्या है. And then मतलब हर 2-3 दिन बाद ना she would be sitting and she'd be like हाय किस्मत ख़राब निकली है, बच्ची की किस्मत ख़राब थी. And I'm like, और कभी कभार तो लाइक इग्नोर इट बिकॉज ही इज ऑन अबाउट इट हाफ द टाइम कि भाई बच्ची की किस्मत ख़राब हो रही है. वेरी हार्ड टू फॉर हर टू अंडरस्टैंड कि ये हो गया. बट एट द सेम टाइम लाइक कभी कभार फिर आई लाइक यू नो आई ट्राई टू डिस्कस इट विद हर कि किस्मत अच्छी होना शादी के बाद ही क्यों ज़रूरी है. लाइक आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अपनी मर्जी से ज़िंदा रह रही हूँ, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ गुड फैमिली. ये किसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ. आपकी पूरी की पूरी किस्मत जो है वो आपकी शादी के सक्सेस से डिफाइन नहीं होती है. कहती है नहीं बेटा घर तो तभी बनता है जब शौहर हो. लाइक मैं घर अपना खुद बना लूँगी, मेरे इस घर में क्या मसला जहाँ मैं रह रही हूँ. तो इट्स वेरी हार्ड फॉर लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम दैट माइंडसेट, दे कम फ्रॉम दैट जनरेशन, और वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं. हर कोई जैसे आई वुड लाइक टू थिंक कि हर कोई हमारी तरह क्वेश्चन करने वाला नहीं होता. लाइक हमारी जो जनरेशन है खासतौर पे लाइक जो ये जेन मिलेनियल्स हैं बेसिकली, वी स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ऐसे क्यों है, मैं ये क्यों नहीं कर सकती. एंड वी मेड इट easy for coming generations. They're allowed to do a lot of things that we weren't allowed to do. So we made it easy for them. I like to take the credit. We paved that way. We fought the battle with the older generations. We asked a lot of questions. It's okay. Like हमारी generation accept कर लेती है, उनकी generation से अभी तक accept नहीं करता. And I think that's okay. That's okay. हाँ, मतलब it's what they've known and heard their whole life. I don't think it's their time now to like understand these things. The good thing is, the thing we can do is sort of break that chain, not do that. Yeah, exactly. उनको समझाने का टाइम नहीं है. The only thing we can do is like pave the way for the other generations. It's okay. Yeah, and other people as well. Yeah. कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए. I was talking to a friend उस दिन and I was like, she was like कि पाकिस्तान में कोई divorce वगैरह होती है ना तो आपको थोड़ा सा वो होता है कि she had the courage to get out of it. You know, and she had the, you know, means to get out of that relationship and still be okay, because Pakistan में पहले नहीं होता था किसी के पास coming generation. So it's like a step forward. So you feel like it's something good. Like people say ना कि divorce rate बहुत बढ़ गया है. I feel like it's a good thing that people are starting to get to know what is a toxic marriage and आपको कब move on करना है. So a higher divorce rate is not a bad thing. A higher divorce rate just means that women are standing up for themselves now more. Exactly. क्योंकि ज़्यादातर लोगों का भी आर्ग्यूमेंट यही होता है. पुराने ज़माने देखो सारी उम्र गुजर जाती थी, लाइक क्या फ़ायदा होता था पूरी उम्र, मतलब ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह के गुजर जाती थी. आई रिमेंबर व्हेन आई केम बैक, मैं सोई हूँ. Like I slept for 2 days because I felt like I couldn't, like उस जब आप वो कहानी है ना कि डड्डू को आप गर्म पानी में डाल दो तो फ़ौरन छलांग मार के बाहर निकल जाता है. एंड आप ठंडे पानी में डालो ना, आहिस्ता आहिस्ता पानी को गर्म करो, इट विल नेवर फाइंड आउट कि वो गर्म पानी में मर जाएगा अंदर ही. तो आपको खुद नहीं पता होता आप कितनी टॉक्सिसिटी में हो जब तक आप निकलते नहीं हो. देन यू रियलाइज कि वाओ इतनी ज़्यादा चीज़ों में मैं फंसी हुई थी. एंड दैट व्हाट हैपेंड टू मी. मैं निकली हूँ
तो पता चला एंड अगले दिन मैं उठी हूँ अपने एंड आई फेल्ट सो लाइट बिकॉज देयर वाज कांस्टेंट वो ना एंड आई हेटेड हाउ आई हैड बिकम लाइक आई एम नॉट अ बहुत साइको पोजेसिव वाले लोग होते हैं, आई एम नॉट दैट. मैं साइको पोजेसिव भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस तरह घुसने वाली भी नहीं हूँ लाइफ में, इसलिए मुझे वो पसंद भी नहीं है कि वो अगला बंदा मेरे साथ करे. तो आई एम लाइक जो करना है करो, मतलब सुकून, लाइक ट्रस्ट होना चाहिए ना आपके रिलेशनशिप में. So I was becoming this person that didn't like myself, jealousy and like constantly thinking कि इसका phone check करूँ, and then constantly wondering where he's going, and still आदत भी नहीं है वो बहुत ज़्यादा पूछने की. And then वो फिर I didn't like who I was. Like afterwards it took me a long time to get back to who I am, but now I'm like back to who I am. That's good. Yeah. That's great to know. Yeah. So do you think, okay, so we were discussing, I asked you पहले कि what are something that you think girls should know, जिसमें आपने बोला था that first give it your 100% so that you don't have regrets later. Would you like to add more on what women should know? Because see, after getting a divorce, there are a lot of things that you learned about marriage and how it should be, right? So do you think that like there's some things that maybe girls should do before they get married, so that if they end up in a situation like that, they would have it easier? I think it's very important to not see everything through a rose-colored glasses. Okay. And focus on the red flags. क्योंकि आप जब टेक द टाइम टू गेट टू नो द पर्सन ना, लाइक शादी वाले दिन आप मिल रहे हो उस बंदे से, आपको क्या पता है उस बारे में. एंड इट्स वेरी ईजी टू प्रिटेंड टू बी समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली जब आप फ़ोन पे बातें कर रहे हो किसी से. लाइक आई फील लाइक दिस नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड. मीटिंग द पर्सन यू आर मैरिड, हैंगिंग आउट विद दैम, सीइंग दैम कि अपने वो फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, हाउ आर दे मतलब बिहेविंग विद द सर्विस एट नॉर्मल रेस्टोरेंट्स वगैरह, लाइक मतलब वो बेगर्स वगैरह को कैसे हैंडल करते हैं. आई थिंक इट नीड्स टू बी नॉर्मलाइज, जस्ट गेटिंग टू नो द पर्सन. नहीं होता पाकिस्तान में, बहुत कम होता है कि यू नो गेट टू नो द पर्सन. एंड देन इफ़ यू नोटिस रेड फ्लैग्स, डोंट टेक देम दैट लाइटली, क्योंकि जो चीज़ बहुत छोटी शुरू में लगती है ना कि वो दैट्स नॉट अ बिग डील, आज बुरा मूड था, आज थका हुआ था, आज ये था, नहीं ऐसे नहीं होता. लाइक थक हर कोई जाता है, बदतमीजी थक के आप कर रहे हो तो दैट सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन. अब वेटर से किस तरह से बात कर रहे हो, दैट सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन. तो आई फील लाइक कि ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, लेटर ऑन दे बिकम वेरी ह्यूज. वो आई थिंक कल परसों आई रेड अ पोस्ट कि बिफोर ही हिट्स यू, ही हिट्स नियर यू, ही हिट्स वॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो it builds up. You never ignore the red signs, the red flags. So do you think financial independence is one of those things too? That's like a very funny thing, क्योंकि I know a lot of people and I am like, हम financially independent होना इतना मुश्किल नहीं होता. You get a job, you're financially independent. Mentally independent होना बहुत मुश्किल है. Okay, can you elaborate on that? पाकिस्तान में ना women are allowed sometimes, not generalizing, कि जॉब कर लो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे. मतलब सोच में इंडिपेंडेंस नहीं होती. वो जैसे बर्ड होता है ना, उसका पर ना भी काटो तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि वो डरता है, वो वही रहेगा, क्योंकि वो फियर डाला हुआ है ना कि हम निकलेंगे, हम अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे, हमें कोई वो नहीं करेगा तो हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, कहाँ कैसे जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें किस तरह करेंगे. दिमाग में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अनलिमिटेड मनी, इतने मतलब दे कम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, दे हैव वो ट्रस्ट फंड्स तो चलो नहीं होते यहाँ पे, लेकिन अच्छे खासे पैसे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टेप नहीं ले सकेंगे क्योंकि माइंड में इंडिपेंडेंस नहीं है ना. दे डोंट थिंक कि दे कैन डू इट इंडिपेंडेंटली, कि वो हाँ कि हम सर्वाइव कर भी सकते हैं अकेले. हाँ, इफ वी कैन डू इट बाय आवरसेल्व्स. दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. एंड आई फील लाइक देयर वाज दिस शो, यार नाम ही भूल गया, नेटफ्लिक्स पे था. एनीवे आई सॉ दैट, और उसमें भी उन्होंने यही दिखाया था कि ये औरत होती है, शी इज़ मैरिड टू दिस मैन, और शी डजंट स्टेप आउट ऑफ द मैरिज बिकॉज अगेन वो मेंटली इतना उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. एंड ही बेसिकली मैनिपुलेटेड हर इन अ वे कि इवन इफ शी कुड लिव और सर्वाइव ऑन हर ओन, उसका दिमाग में ये था कि भाई मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकती. एंड वो जो कोर डिपेंडेंसी इतनी जब स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो she thought कि she can't survive without him because of the consistent manipulation and the gaslighting. और
कॉन्स्टेंटली उसको वो ना अपने से नीचे रखता था और नीचे उसको ऐसा फील कराता था कि वो इन्फीरियर है, कि उसके बगैर वो रह ही नहीं सकती, मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फ़लाना करता हूँ तुम्हारे लिए. तो वो जब कॉन्स्टेंटली वो एक चीज़ सुन रही है तो जाहिर है वो बिलीव कर रही है उसे. एंड व्हेन इट केम डाउन टू लीविंग हिम, लाइक शी जस्ट कुडंट, यू नो. आई ऑलवेज बिलीव कि रिलेशनशिप्स आर नॉट के, क्योंकि जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी बना लेते हो ना, तो आप फिर सोचते हो कि यार ये चला जाएगा तो मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी. तो यू नीड टू हैव योर ओन लाइफ, बोथ ऑफ देम, लड़के की भी लड़की भी, एंड देन शेयर दैट लाइफ इंस्टेड ऑफ एक को पूरी ज़िंदगी बना लो कि यही मेरी ज़िंदगी है, इसी के लिए मैंने ज़िंदा रहना है, इसी के लिए सब कुछ करना है. जब आप ये करोगे ना तो फिर आपके पास मार्जिन ही नहीं रहता उसके बगैर रहने का. फिर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो या जो मर्जी हो, मैटर नहीं करती, बिकॉज आपने तो उसी के साथ रहना है. चाहे वो ची करे बाँ करे, रहना तो मैंने उसी के साथ है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ ही नहीं है. लाइक विमेन इन पाकिस्तान, दे लीव देयर फ्रेंड्स एंड सोसाइटी encourages it ना. शादी के बाद लड़कियों को दोस्त नहीं रहते. Like everyone says this. शादी के बाद एग्जैक्टली, हाँ, क्यों नहीं रहते? शादी के बाद आपने अपनी जब बाकी लाइफ खत्म कर दी, देन हाउ विल यू लीव दैट पर्सन. सब कुछ छोड़ दो. डिग्रीज अपनी घर छोड़ के आना, गाड़ी भी अपनी घर छोड़ के आना, लाइसेंस छोड़ के आना, सब कुछ छोड़ के आना, फ्रेंड्स भी छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी ये है. वो लड़की किस तरह छोड़ सकती है अब उसके, क्योंकि फ्रेंड्स रखने पड़ते हैं. लाइक व्हेन आई वाज मैरिड, आई स्टिल, क्योंकि मेरी जो बचपन की फ्रेंड है, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, तो आई वुड स्टिल गो एंड स्टे एट हर प्लेस, जिस तरह मैं पहले बचपन से रहती आ रही हूँ. लाइक 1 क्लास से मैं उसके घर जाके रह रही हूँ. लाइक हर हाउस इज़ माई हाउस. तो मैं तब भी जाती थी. एंड माई व्हेन माई सास यूज्ड टू आस्क तुम किधर जा रही हो, तो माई हस्बैंड वन सेड कि ना तुम अपनी अम्मी की तरफ कहते हैं. आई वाज लाइक व्हाई, मतलब मेरी बहन है वो, आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स हाउस. इट वुड हैव बीन ओके इफ आई वाज गोइंग टू माई सिस्टर्स हाउस. आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स हाउस एंड आई एम गोना से इट दैट वे. मैं फिर घर जा रही हूँ, मैं कह देती थी. इट्स जस्ट इनसेन हाउ, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स यू रियलाइज कि पेट्रियार्की ने हर एंड पे ना औरत को पूरे डाले मुश्किल में डाला हुआ है. कि जब वो शादी होके आ जाए तो यही वजह है उसकी, आयशा, कि वो अपनी बाकी सारी ज़िंदगी छोड़ दे ताकि वो छोड़ के ना जा सके. क्योंकि वो कैसे छोड़ के जाएगी. हाँ, अगर उसकी कोई ज़िंदगी है ही नहीं बियॉन्ड द हर होम दैट शी इज़ मेकिंग नाउ एंड द पीपल दैट शी इज़ सर्विंग इन दैट हाउस, तो वो ज़ाहिर आपकी ग़ुलाम से बनती जाएगी. वेयर शी कैन नॉट लीव बिकॉज शी डजंट हैव अ चॉइस एनी मोर. शी डजंट हैव एनीवेयर टू गो ना. शी डजंट हैव एनीवेयर टू गो. जाके हिम्मत नहीं है उसकी रहने की कि मैं एयरबीएनबी करा लूँ और मैं निकलूँ यहाँ से. शी वुडंट डू दैट, क्योंकि अम्मा पापा को कॉल करके वो बताएगी तो अम्मा पापा भी लाइक वहीं रहो. You stay over there. We married you off. And she doesn't have the mental independence to say कि आप लोग नहीं रखना चाहते, मैं कहीं और चली जाऊँगी. और वो एक होता था ना कि भाई ज़्यादा दोस्तें ना रखो, या घर पे भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, या लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए ज़्यादा, बस अपने हस्बैंड की फ्रेंड्स और उनकी जो बीवियाँ हैं वही होनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोग उसको ख़राब कर देंगे. और ख़राब का क्या मतलब होता था कि शायद वो उसे रियलाइज़ करा देंगे कि तुम्हारे साथ जुल्म होता है उस घर में बहन. यू नो दैट्स द थिंग. ख़राब कर देंगे और वो हमारा घर तबाह हो जाएगा, ये जो भी हो जाएगा, और उसका पूरा फोकस जो है हमारा घर बनाने में और बसाने में होना चाहिए. बस ये करो, कपड़े बर्तन यही तुम करो. एंड जॉब भी करनी है तो बस जॉब करो चुप करके, उधर भी दोस्त से खबरदार बनाई. हाँ, वही कहते हैं कि लाइक बहुत सारे लोग इसलिए जॉब नहीं कराते कि जॉब कर लेगी तो ज़्यादा हवा में उड़ना शुरू हो जाएगी. हाँ, जाहिर है दैट बेसिकली मीन्स कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और जिस दिन उसका दिल चाहेगा वो चली जाएगी. And they don't want that. They don't want that. It's like a vicious cycle. And I think feel like बचपन से स्टार्ट होता है. लड़कियों को शुरू से स्कूल भी भेजे ना तो they're taught कि स्कूल में फ्रेंड्स बनाने नहीं जा रही हो, एंड फ्रेंड से बात भी करने इतना ज़्यादा नहीं देंगे. लड़कों का इतना ज़्यादा जाने भी नहीं देंगे, लेकिन लड़कों का भी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना लड़कियों का होता है. लड़के के फिर फ्रेंड्स होते हैं बिकॉज दे लाइक लड़के के तो फ्रेंड्स. एंड वो सारा वो पूरा जो स्टीरियोटाइप है कि लड़के के फ्रेंड्स तो रात के 3 बजे भी आपके आ जाएंगे मदद करने के लिए, लड़कियों के फ्रेंड्स तो नहीं आते रात के. कैसे आएंगी? कोई बता दे कैसे आएंगी. लेकिन आई अल्हम्दुलिल्लाह वाज वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव द फ्रेंड्स जो लड़कियां भी रात के 3 बजे मुझे बचाने के लिए आ जाएंगी. लाइक देयर इज नो डिफरेंस. लेकिन नहीं होता ना सबके साथ ये, तो अच्छी लड़कियां भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन आयशा होती हैं, वही तो मैं कह रही हूँ. लेकिन 3 बजे अगर वो उसको उसके सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करते तो वो जितनी भी अच्छी फ्रेंड है वो नहीं आ सकेगी. क्योंकि सोसाइटी, हाँ, वो तो सिक्योरिटी पे और उस पे आ जाती है बात. लेकिन लड़कों को ज़्यादा नहीं किया जाता कि कोई लड़का आपका दोस्त बहुत जिगरी यार है वो तो इज फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और लड़कियों के फ्रेंड्स सिर्फ शादी तक होते हैं. उसके बाद फिर वो बस कभी कभार
हेलो हाय हो गई तो बहुत है हमारे लिए. हाँ, बट दैट हैज चेंज्ड अ लॉट नाउ. अब तो खैर इससे इतना नहीं होता. We millennials we questioned a lot of things and we said कि नहीं ऐसे नहीं होगा. तो I think we paved the way for the better for the coming generations. हाँ. उनके लिए बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए नॉर्मलाइज नहीं थी. लड़कों के साथ पढ़ना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, अब जीन्स पहन लेना, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमारे से पहले इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी. और हाँ, और लाइक आई थिंक इट्स सो वियर्ड कि आई थिंक अब जो लड़के हैं वो भी कहते हैं भाई यार तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, जाओ कुछ करो. पूरा दिन मेरा क्या वेट करती रहती हो, यू नो. हाँ, बिकॉज आई हैड मूव फ्रॉम लाहौर जब मेरी शादी हुई थी. मतलब मूव्ड के इन द सेंस कि मैंने अपना अंडरग्रेड वहाँ से किया था, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर. आई हैड फ्रेंड्स हियर बट नॉट as many. हाँ, और who were so available all the time. कम थी तो जाहिर है कम मिलने को मिलता था. तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो I didn't have a social life as much as my husband did. My husband had like a crazy social life. So obviously he would be in his social life and do his thing. And मैं बस like, you know, a lot of the times I would just be like staring at the walls because मेरी थी नहीं उस तरह की. थी but like वही उस तरह नहीं थी. Exactly. तुम भी निकलो कहीं जाओ. तो he was just like यार खुदा के लिए कोई दोस्त बना लो, जाओ. So things have changed उस तरह से कि यार फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, चीज़ें करो. I even remember कि my husband used to say हम ना तुम अगर तंग आई हो ना घर पे किसी से या कोई तुम्हें तंग कर रहा है या तुम मुझसे तंग आई हो तो प्लीज़ जाओ किसी फ्रेंड के पास and let it out. So it's a complete opposite. कि वो basically लड़कियों को इसलिए मना करते थे फ्रेंड्स के पास जाने से कि वो वेंट करेंगी और वो उनको इनकरेज करेंगी और इस तरह हो जाएगी गलती. हाँ, और मतलब हमारे अगेंस्ट कर देंगी उसकी फ्रेंड. माई हस्बैंड वाज लाइक द ऑपोजिट. ही इज लाइक हम ना गो टू अ फ्रेंड and vent out whatever issues you're having at home. You need that. He would say you need that for your sanity. And he wouldn't care कि अच्छा हम ना जाके मेरी बुराई करेगी या मेरे घर वालों की करेगी. He was like कि तुम्हारी sanity के लिए बहुत important है. I think that's like go do it. That's like a definition of a good husband. I was like मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी, मुझे ज़रूरत नहीं है. कभी कभार कर लेना चाहिए. It's important. It's very important to have a social circle outside of your ससुराल and everyone जो कि related है उस घर में. Yeah, it's very important. So I guess to some level, I don't know, obviously a lot of the men are not like that, but I'm sure there are some. Yeah, I think वो चीज़ें change होती जा रही हैं and that's good. That's good. It's going to take some time for people to come around on the old habits. Okay, so you were talking about the financial independence bit where you said कि वो mentally हाँ, so that was really good. अच्छा. So, did social media, being a public figure, had anything to do with, like, I don't know, did it like affect your divorce in any way or making that decision? एक तो होता है ना, देखें आपकी प्राइवेट लाइफ हो तो आपको ऑलरेडी होता है कि वो लोग क्या कहेंगे, you know. फिर आपकी पब्लिक लाइफ भी हो तो उसमें लोग और भी ज़्यादा हो जाते हैं. Exactly. कि मतलब सबको पता है कि मेरी शादी हुई भी है और इससे हुई भी है और ये मेरी रिलेशनशिप है, तो अब मैं किस तरह किस तरह करूँगी. ये बैक ऑफ द माइंड होगा, बट ये एक तरह की सिचुएशन में मैं थी उसमें इतना बड़ा वे नहीं करती थी वो चीज़. अच्छा, लाइक वो हैंडल कर लूँगी. हाँ, इट्स द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स. हाँ, इट वाज अ कंसर्न. अगर वो कोई बहुत आई फील लाइक अगर वो पब्लिक वॉर में कन्वर्ट हो जाता तब इट वुड हैव अफेक्टेड अ लॉट ऑफ माय मेंटल हेल्थ, बट वो इट डिडंट, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इट वाज लाइक इट वाजंट दैट. वो मैंने कहा कर लेंगे, लाइक मतलब आर्काइव कर दी तस्वीरें, बस मैंने कहा कर लेंगे हैंडल, वो हो जाएगा. बट पीपल डिड आस्क मी कि आपकी तो आपने तस्वीरें हटा दी हैं, आपके साथ तो एक लड़के होते थे वो कहाँ गए हैं. एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल है कि फेम लेने के लिए की थी, एंड देन जब हो गई है तो आई वाज लाइक हु गेट्स मैरिड अंटिल लाइक आई एम मैरिंग Elon Musk. इट्स नॉट एप्लीकेबल. आई मीन फेम लेने मतलब व्हाट, फेम लेने के लिए, और जब हो गई है वाज लाइक आई टुक अ स्टेप डाउन, आई लॉस्ट माय टीम, आई लॉस्ट द इक्विपमेंट जो मुझे एक्सेस था, वो सब कुछ मेरा, मतलब इफ आई वाज डूइंग इट जस्ट फॉर माय ब्लॉग आई वुड हैव स्टेड विद हिम. I don't know, आयशा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती because I've been there, not in the same obviously capacity, but in another way where a lot of people assume that I've done things because I wanted fame. मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस तरह अगर मैं किसी को कभी कुछ करते हुए कुछ देखती हूँ ना ऑनलाइन जो कि बड़ा ड्रामेटिक हो या बहुत डिफ़िकल्ट हो या इट्स अ
मेरे दिमाग में ना कभी ये नहीं आता कि इस इंसान ने फेम के लिए किया. Yeah. I never think like that. I don't know. Like, why do people think like that? That's because you are positive vibes only and not a lot of people are. No, because I don't know. Because I genuinely believe कि ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं. Yeah, me too. But जब से मैंने ऑनलाइन आना शुरू किया है और मैंने लोगों की बातें सुनना शुरू किया अबाउट द थिंग्स दैट दे से, एंड नो आई एम नॉट सेइंग कि लोग बुरे हैं, बट लोग ये समझते हैं कि लोग बुरे हैं. People focus on the negative more than the positive. लोग पता नहीं क्यों लोग, आई डोंट नो इफ इट्स इन पाकिस्तान, बट लोग समझते हैं कि ज़्यादातर लोग बुरे हैं. एंड व्हेनेवर समथिंग हैपेंस द फर्स्ट अजम्पशन पीपल विल मेक इज़ कि इसके किसी बुरे रीज़न की वजह से हुआ है, अच्छे रीज़न की वजह से नहीं हुआ. People focus on the negative. They just want to look at the worst side of everything. But it doesn't help your own mental health. It doesn't. इसीलिए तो पाकिस्तान में सारे, इसीलिए तो पाकिस्तान ऐसा है. ये इसने इसलिए किया है क्योंकि इससे इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाते हैं, इससे किया है इससे फेम हो जाता है, ये इसने इसलिए किया है इससे पता नहीं क्या हो जाता है. लाइक उसी जैसे हिजाब का ये करते हैं कि हिजाब में से आई डोंट डू इट 100% ऑफ द टाइम. अच्छा. मैं नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ में. आई डू इट व्हेन आई वांट टू, आई डोंट डू इट व्हेन आई डोंट वांट. लेकिन मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल पुटिंग अप प्रॉपर परमानेंट पोस्ट जिसमें मेरा हिजाब ना हो. आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट वे. तो मैं नहीं लगाती थी, बट वो पर्सोना ये आता था कि ये तो 100% करती है. एंड देन जैसे कोई ब्लॉगर है वो हिजाब उतार देते हैं, एंड देन पीपल वुड बी लाइक कि इसने फेम के लिए किया हिजाब, एंड जब फेमस हो गई है तो अब इसने हिजाब उतार दिया. एंड आई कैंट हेल्प द थिंक कि कुछ मतलब देयर ब्लॉगर्स जिन्होंने लाखों के फॉलोअर्स थे उन्होंने तब हिजाब उतारा. डीना टोक्यो टुक इट ऑफ व्हेन शी हैड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. तो व्हाट इज दैट लेवल जब इट्स ओके टू टेक इट ऑफ एंड वो फेम आ गया. एक ने मिलियन पे उतारा, एक ने 2 लाख पे उतारा, तो वेयर इज दैट फेम? एंड दे वुडंट थिंक दे मेड हर टेक इट ऑफ प्रॉब्ली बाय सेंडिंग हर सो मच हेट एंड मेकिंग life more difficult. And they're like fame के लिए किया है. मैं like talking about fame के लिए हिजाब करना, like if I take it off my opportunities will double. Exactly. My opportunity, there are so many designers, बल्कि all of the designers Pakistan, they don't work with hijabis. शैम्पू ब्रांड्स के साथ मैं काम नहीं कर सकती. देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए खुल जाएंगी, तो वो कौन सा फेम मुझे मिल रहा है अभी? यही तो मैं कह रही हूँ कि इट मेक्स नो सेंस. अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल आर सेइंग कि ये फेम के लिए है, जबकि वो उस बंदे के लिए कम्प्लीटली ऑपोजिट सिनेरियो क्रिएट कर रहा होता है. मतलब ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई. आई फील लाइक कि इट्स getting attention and everything is much easier without the hijab. जो लड़कियां हिजाब के साथ कर रही हैं, it's a lot. Yes, I think it's another. I mean, I think if you take the hijab and then you have to do all of this, I think those girls have it more difficult. It's difficult. Not an easy path to fame. So I don't. That's what I'm saying. It's so funny कि लोग किसी भी चीज़ में बस ये assumption लगा लेते हैं, and that's just really really sad. It is like मुझे जब हिजाब वगैरह के लिए हेट आ रहा होता है ना, तो फील रियली हैप्पी कि जो लोग हेट भेज रहे होते हैं ना, और उसमें वो लड़के भी तो होते ही हैं, लेकिन लड़कियां जो हिजाब करती हैं, निकाब करती हैं, दे आर लाइक कमिंग फ्रॉम अ सुपीरियर ग्राउंड के हम परफेक्टली कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं परफेक्टली कर सकती. एंड आई कीप thinking about all the women who have come up to me and sent me messages कि हमने आपकी वजह से स्टार्ट किया. And I'm like, आपके इन hate messages की वजह से कितने लोगों ने स्टार्ट किया होगा? Like I'm inspiring people to do something, and how many people have you inspired by that? You know, calling me मिया खलीफा बुला के मुझे आपने कितने लोगों को inspire कर लिया होगा? Please let's talk about that. And it's like it doesn't make sense क्योंकि people put hijabis on a pedestal. Yeah, that they don't want to be on. वो खुद उनके लिए बेटे ने बने हैं, उनके लिए बेटे ने बने हैं. एंड जैसे मतलब आई स्टार्टेड टू फील लाइक कि मेरे हिजाब की वजह से ना लोगों को ये पर्सोना आ रहा है कि मैं 100% करती हूँ, जबकि मैं 100% नहीं करती थी. तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरीज वगैरह ना. अच्छा, विदाउट हिजाब, ताकि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा हिपोक्रिटिकल फील होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं नहीं करती, मैं मतलब नॉर्मल बाजार वगैरह जाना है तो इतना मैं बॉदर नहीं करूँगी. तो मतलब मुझे था कि मतलब पीपल डोंट रियली नो कि मैं 100% दफ़ा नहीं करती. एंड व्हेन आई पोस्टेड अ फ्यू ऑफ द स्टोरी, तो शुरू में अब तो नॉर्मलाइज हो गए हैं लोग कि कभी करती है कभी नहीं करती है, लेकिन पीपल वर लाइक ओ तुम्हारा भी उतरना शुरू हो गया है, फेम मिल गया है. तो मेरे को कौन सा थ्रेशोल्ड है वो फेम का? It's kind of ridiculous. Like everything is more haram for hijabis. Yes. Everything. वो जीन्स नॉर्मल लड़कियां पहनती हैं, लेकिन मैं पहनूं तो हराम हो जाता है. अच्छा, अब मुझे इस तरह भी लगता है कि जैसा आई एम
internally, like I'm a very spiritual person. And I'm very close to Allah Mia, you know, and there's a lot of those things that I want to say and talk about. But मुझे हमेशा ये होता है कि as soon as I'm going to talk about these things or say anything, the first thing people will question is, लेकिन तुम हिजाब तो लेती नहीं हो, then who are you to talk about these things? Which is so sad, and that is why I don't. Even though I know that I have a few really nice things to say. But just because, you know, I haven't covered my head, it's just like I don't have the right. Yeah. Because for a lot of people, that religion for a woman starts and ends with what she's wearing. Exactly. And I think, like, yeah. पूरी life ही I think what she's wearing से start होती है. And if she's not wearing what she's supposed to be wearing, then उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं रिलीजन, कोई रिलेशनशिप विद अल्लाह मियाँ नहीं है, कोई वो नहीं है. तो I mean, people just really sort of have a very narrow lens. It's kind of annoying too, to be honest. Like इतनी वो toxicity बढ़ गई है ना कि वो आपको एक point पे आके feel होता है यार उतार ही दूँ. Look, there was like very serious points in my life when I felt like कि मैं उतार दूँ मेरे लिए आसान हो जाएगा. So imagine, Aisha, that these people who want women to wear a hijab are just making it more difficult for them. They are making it for. And shouldn't this world be making it easier? And I feel like इधर करना शायद ज़्यादा टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है क्योंकि इधर पीपल आर लाइक ठीक नहीं कर सकती ना तो उतार दो, ठीक नहीं कर सकती ना उतार दो, तुम तो ये हो, तुम तो वो. एंड पीपल हैव अ लॉट टू से अबाउट एंड दे मेक इट डिफिकल्ट. एंड आई डोंट नो बाहर क्या सीन होता है, दे मेक इट ईजी और नॉट, लाइक आई डोंट नो. बट पाकिस्तान में दे मेड इट वेरी डिफिकल्ट कंसिडरिंग इट्स अ मुस्लिम कंट्री. इट शुड हैव बीन, यू नो, आई वंस गॉट दिस मैसेज जिसमें एक लड़के ने मुझे मैसेज किया हुआ था बल्कि, एंड ही वाज लाइक, जून जुलाई का टाइम था, एंड ही वाज लाइक इतनी गर्मी में भी आप हिजाब करती हैं, इतनी गर्मी है बाहर, तो लाइक कूडोज टू यू कि यू आर स्टिल ट्राइंग. एंड आई वाज लाइक that's how everyone should look at it. I was very happy to get that message. It like made my day. क्योंकि अब सब बाकी सारे देखो तो मियाँ खलीफा like so annoying. हाँ, so I get when you said कि बंदा यही सोचता है कि फिर उतार ही दें, बिकॉज लोग इतना सवाल जवाब और इतना आपके लिए सफोकेटिंग करते हैं उस चीज़ को पहनना कि आप कहते हो कि यार मैंने ना पहना हुआ होता ना तो शायद कोई बात ही नहीं होती इन द फर्स्ट प्लेस. इतना प्रॉब्लम होता ही ना इन द फर्स्ट प्लेस. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक, I think when you were like, I don't know if this is the right sort of example, but like if you're like a really, really nice, docile kind of a person, ठीक है, and one time like you get upset, people get really upset with you. But if you're generally a very सड़ा हुआ person, ठीक है, so people are like ठीक है whatever, वही वाली बात है. Do you get what I'm saying? कि फिर लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर आपने हिजाब ना लिया हुआ हो तो ठीक है, लोग लाइक अच्छा whatever, ये तो ऐसे ही है whatever. ये तो ऐसी है उनके लिए. हाँ, तो जो सड़ा हुआ इंसान है उन लोगों को होता है ना सड़ा हुआ ही है. लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हो तो फिर आप थोड़ा सा भी गलत करें ना तो people will make it difficult. हाँ, तो अगर आपने हिजाब लिया है ना और आपका एक बाल निकल रहा है ना, ये बाल क्यों निकल रहा है, तो it's a huge problem. That's not fair. Why do they make it difficult for the good people? वाली बात हो जाती है. I keep thinking like at least I'm trying. I never said can I do perfect hijab. मैं मतलब कभी करती हूँ कभी नहीं करती, लेकिन at least I'm trying. Yeah. You know, I'm trying because of Allah Mia. I'm not trying for you people. Yeah, and at the end of the day, it's nobody's business. It shouldn't be anybody's What a woman wears is nobody's business. मतलब वो What I wear, you wear. जिसकी जो मर्जी है पहनो यार. मतलब मुझे बीच में मतलब बाय टाइम आया था when I seriously thought कि मैं उतार देती हूँ, आसान हो जाएगा, जिंदगी मेरी आसान हो जाएगी. And then I talked to my mom, like मैं सोच रही हूँ उतार दूँ, you know, बस हो गया मेरी, बहुत तंग करते हैं लोग. My mom is like कि मतलब जब आप ठीक काम पे चल रहे होते हो ना तो अल्लाह मियाँ मुश्किलात पैदा होती हैं. तो मुश्किलात है तुम्हारे लिए, if you like push through it, करती रहो जो अच्छा काम कर रही हो, and then अल्लाह मियाँ will like आसानियाँ पैदा करेंगे तुम्हारे लिए. तो लोगों की अगर दुनिया के कहने पे तुम उतार देती हो ना तो अल्लाह मियाँ will be like सवाब भी उन्हीं से जाके लो फिर, या गुनाह भी उन्हीं से जाके लो. And I was like yeah, that makes sense. That makes sense. I don't know, maybe down the line I will take it off, who knows. Like right now I don't want to take it off, but at the same time people put that thought in my mind कि उतार दो. maybe down the line मेरा खुद दिल करे मैं उतार दूँगी. I'm the sort of person कि मैं करती हूँ तो दिल से करती हूँ. शुरू में I say कि I'm not
मतलब मैं बहुत कोई वो नहीं हूँ कि यार मैं बड़ी सती सिवित्री हूँ तो मैं हिजाब भी करती हूँ. आई एम नॉट परफेक्ट. आई स्टार्टेड हिजाब बिकॉज आई वॉज टू लेजी टू डू माई हेयर. सीधी सी बात है. I didn't start hijab because of religious reason. I was going to university with guys in it, and I thought it would be easier. रोज कौन बाल बना के जाएगा? And later on, when I developed a relationship with Allah Mia, and I थोड़ा सा मैं इस्लाम से थोड़ा करीब हुई, and it turned into religious reasons. Now I do it for Allah Mia because मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं परमानेंट पोस्ट लगाऊंगी तो जैसे मैं अभी बाजार जाती हूँ 6 लोग मुझे देखेंगे. अब गुनाह मिलता है ना बाल आपके बाल कोई देखे. अब मैं वही तस्वीर जाके लगा देती हूँ 2 लाख लोग देखेंगे. मुझे गुनाह तो 2 लाख लोगों का मिलेगा ना. तो इसलिए आई डोंट फील कंफर्टेबल पोस्टिंग इट परमानेंटली वेयर एवरीवन कैन सी इट. बट आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि मैं कहूँ कि यार छलांग मार लो सोफे के पीछे कोई लड़का नजर आया तो. इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ. बट ये सोफे के पीछे हाँ सही. it's a process, like at least I'm trying, so that should matter कि try तो करिए ना at least. So in your content you talked about divorce, so a lot of your content is full of humor also, like you use comedy as well to share a lot of things जो कि ज़रा difficult भी होती हैं share करना, तो you will use humor and all. That's a really good and interesting thing क्योंकि I think comedy for girls is a bit rare, no? It is. हाँ, like बहुत कम हैं लड़कियाँ पाकिस्तान में जो funny content कर रही हैं. I think I can name you guys on one hand. Exactly. हाँ, so why is that? I don't know. I honestly don't know why is that. क्योंकि there are so many funny people out there. Like बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो कि women, they're very funny. They make really good jokes and like हमेशा हंसा देंगी. But at the same time, content creation में बहुत कम है. I don't know. Maybe it's because like everyone tells कि लड़कियाँ funny नहीं होती. Like it happens to Western ये जो stand-up comedians हैं, उनके साथ भी होता है. Like people tell them कि women are not generally funny. And it's like तो पता नहीं क्या logic उन्होंने डाली भी होती है कि कोई हार्मोन होता है जो सिर्फ लड़कों में होता है that makes you funny. I don't know, like कोई इस तरह की बात थी जो मैंने एक came across it. अच्छा. Maybe it's because of that कि people generally think women are not funny. Guys are supposed to be funny. And maybe it's because of that. No, it's because I think it's, I don't know actually. I don't know. But maybe it's because the society takes women too seriously and it's just again one of those things के यार अगर एक हरकत लड़का कर रहा है और वही हरकत लड़की कर रही है तो लोग लड़की वो कर रही है तो उससे ऑफेंड होंगे, लेकिन लड़का कर रहा है तो उस पर हंसी आएगी. Like two different जो meters हैं उनको जज करना. That makes more sense than what I said, what she said. Okay. And also like I feel कि वो एक थिंग होती है ना कि अगर लड़की उसी तरह बिहेव कर रही है, उसी तरह जोक्स मारी है तो वो ओवर हो रही है. हाँ. लेकिन लड़का फनी हो रहा है. I don't know why that is, but it does happen. It does happen. Because I think society likes to see women fit into that frame. Perfect women frame. जिसके अंदर बिठा दो. हाँ, और obviously उस frame में उन्होंने humor बनाया हुआ नहीं है ना, उसके अंदर वो humor का aspect नहीं है. Jokes तो नहीं मार. Jokes नहीं मार. Sarcasm is not for you. Woman, go in the kitchen, make me a sandwich. I remember, मैं बताती हूँ. मैं ना यूनिवर्सिटी में थी और मैं अपने का जो हमारा हॉलवे था लाइक कॉरिडोर, उस पर मैं खड़ी हुई थी और मैं उसमें हंस रही थी हा 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 व्हाटएवर संवाद पे. तो हमारे एक प्रोफेसर थे बड़े ओल्ड और सड़ू से ना, तो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो मुड़ के मुझे कहते हैं खबरदार लड़कियाँ इतनी ज़ोर से नहीं हंसती. क्यों? Why? तो लड़कियों को हंसना भी मना था फॉर हिम, यू नो कि ज़ोर से नहीं हंसी. As a girl used to तो मैं तो हाँ कर रही थी उस वक्त. तो हाँ, तो वो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तो उसी तरह नहीं मारती लड़कियाँ. That's what I do all the time. So हाँ, तो it's just one of those things. I think, I don't know. But I don't know what is the real reason. Like no one knows, बस हम speculate ही कर सकते हैं कि क्या मजा है कि. बस normalize करने वाली बात है. जितनी ज़्यादा लड़कियाँ कॉमेडी को करेंगी यूज नॉर्मलाइज हो जाएगा. सिर्फ आदत होने की बात है कि फिर लोग उस फ्रेम जो उन्होंने बनाया हुआ जिसमें लड़कियों को फिट करना है, फिर वो बड़ी होती जाएगी, वो चेंज होगी. जब वो नॉर्मलाइज होगी तो फिर लोगों को वो चीज़ नॉर्मल लगेगी. जब नॉर्मल लगेगी फिर इवेंचुअली फनी भी लगेगी और ऑफेंसिव नहीं लगेगी. बिकॉज इंडिया में इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं व्हिच आर मेकिंग फनी कंटेंट. बाहर हैं
जो यूएस वगैरह में देयर आर लॉट ऑफ फनी कंटेंट क्रिएटर्स, लाइक पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, बट लेट्स सी, इट्स अ प्रोसेस ना, कर रहे हैं ना अब लोग, शुरू किया है तो इवेंचुअली यू विल गेट देयर. आई गॉट टू इट, लाइक क्योंकि मेरी ना बड़ी क्रेजी टाइप सी बबली टाइप की मैं होती हूँ, लाइक आई डोंट रियली थिंक अ लॉट कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स मैं बहुत inappropriate हो जाती हूँ, you know, like saying stuff and doing things and like not very composed person. तो I felt like कि मेरे content में बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनालिटी इस तरह से शो नहीं हो रही कि ये वाली साइड जो है ना मेरी, दैट मेक्स रैंडम जोक्स एंड लाफ्स एंड लेम जोक्स भी मार के हंस रही होती है, वो वाली साइड शो नहीं होती. देन आई थॉट कि आई शुड मेक मोर कंटेंट जो कि मेरी पर्सनालिटी वाला है, क्योंकि आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड आई नेवर एक्टेड ऑन देम. लाइक शुरू से क्योंकि आइडियाज तो आते थे कि इट विल बी फनी वीडियो इफ समवन मेक्स इट, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक इफ समवन मेक्स इट. And then after some time I was like, why don't I make it? क्योंकि I remember डकी भाई जो है साथ, he posted a story कि हम जैद के ऐसे I think साथ था वो, and he was like we want to make a video, तो कोई आइडिया भेजो. तो I sent them idea कि what if I'm gonna make it, don't chorify my idea. तो अब साथ नहीं तुम ले सकते आइडिया मैंने बनाना है. I highly doubt he watches Happy Chirp. I replied to a story. I was like, how about like if GPS was a desi mom? It would be a funny idea, right? Because I thought कि वो दकी भी pull off कर लेगा, Zaid भी pull off कर लेगा. It would be a like, you know, down their line. And then उस time I was like, I used to do that कि ये बना लो. It would be a funny video if someone makes it. It would be a funny video if someone is you. makes it. And then after some time now I was like, मैं क्यों नहीं बना लेती? I can do it. I can become a GPS mom. क्यों my mom does that, क्योंकि उस दिन मैं जा रही हूँ, my mom has this habit कि जब रास्ता गुजर जाएगा ना, यहाँ मुड़ना था, यहाँ मुड़ना था, यहाँ मुड़ना था, लाइक जब मुड़ना था क्या मतलब पहले बताया ना. तो लाइक it would be a funny video. तो now I'm like I'm gonna make it. Why don't I make it? I'll wait for it. That's so funny. That makes sense. कि वही ना, like you just something was holding you back, you know, you can't do it when it's just you. Like मेरा तो ये ना कि I'm not a very funny person. I mean, I laugh a lot, but like I'm not usually the one making jokes. And all the times I am making jokes, but I'm the only one laughing at them also. That happens to me way too much. So, I mean, you know, I'm not like that. Yeah. So, this is not something I can do. But like जो लड़कियाँ हैं जो कर सकती हैं, they should. You know, वही normalize करेंगी. और it's a nice niche क्योंकि I have fun making them as well. Like मज़ा आता है बनाने में. तो क्योंकि मैं खुद भी साथ साथ हंस रही होती हूँ कि it's such a funny video, it's gonna turn out so random, तो फिर खुद भी मज़ा आ रहा था. That's good. Like I used to make lifestyle वगैरह सिर्फ, and then I always wanted to travel. Like I'll always, that's like my goal in life. I want to travel the world. I don't want to sit in one place now. I just want to see the world, experience culture. मुझे culture में घुसने का शौक होता. तो छोटे भी होते थे ना तुम्हारे वो जो वो नहीं होते जो नोमैड्स होते हैं जिनकी छोटी छोटी बस्तियाँ बनी होती हैं. तो जब हम बचपन में गाँव जाते थे ना तो जो लाइक छोटी सी थी जबकि मैं लाइक इधर जाके देखना ये लोग रहते कैसे हैं. Everyone used to laugh at me. रहते कैसे हैं, झुग्गियों में जाके देखना चाहती है, लाइक रहते कैसे हैं. It was very, you know, curious in that side कि लोग कैसे रहते हैं. And then I grew up and I was like कि मुझे दूसरी countries में जाके हर जगह जाके देखना है वो रहते कैसे हैं. Like just wanted to get into culture, but I couldn't afford it. I come from a single mom family, तो like my mom was making ends meet and हम सबको पढ़ा रही हैं, सबको सब घर चला रही हैं. तो I thought कि जब मैं खुद कमाऊँगी तो फिर कर लूँगी, तब मैं ट्रैवल करूँगी. And I just started traveling when I started earning myself. So I haven't traveled a lot, but I have traveled some. I know you're starting to. So before we end this podcast, there's one more thing. So digital A, वो क्या है और वो क्यों है? So basically when I was blogging वगैरह ना, तो जब पाकिस्तान में थोड़ा बूम सा आ रहा था ब्लॉगर्स का, हर कोई ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा था. एंड पीपल यूज टू, जो थोड़े फ्रेंड्स और उस सर्कल में आते थे ना, वो सारे मुझे आके पूछते थे मेरे कि हम क्या करें, लाइक what do I do? एंड वो एक दिन ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, अगले दिन मेरे से हेल्प मांगेंगे. एंड आई एम जनरली आई लाइक हेल्पिंग पीपल. मुझे मैं बैठ जाती हूँ बताने के लिए कि किसको ऐसे क्या करो. लाइक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम आस्किंग फॉर हेल्प एंड आई डोंट हैव प्रॉब्लम गिविंग हेल्प. तो मैं वो बैठ जाती थी एंड आई वुड लाइक स्पेंड एन आवर एनालाइजिंग देयर पेज कि ये चीज़ करो. Oh my God, exactly like Muzammil. And I have asked Muzammil's help a lot of times and he's always very helping. तो माशाल्लाह. तो मैं भी वो बैठ जाती थी बताने के ब्लॉग पे ये करो, ऐसा कंटेंट लगाओ, ऐसे करो, and I will leave it 2 weeks later.
because they got bored. And I was like, मेरे से help क्यों मांगी थी जब you weren't serious about it ना. तो फिर मैंने वो pet rule बना लिया, do it for 6 months, then come to me, I'll help you. Like मैंने कहा 6 महीने करो, कोशिश करो, जो दिल करता है करो, उसके बाद I'll help you. क्योंकि I was like नहीं, वो मूड खत्म हो जाता है सबका वो, क्योंकि जब it doesn't instantly work out, they leave it. तो फिर then I got an idea, क्योंकि initially I wanted to make like a mentor program where I would like get you on board and you would give the mentorship to other students. And I would just be the middle person. Oh, अच्छा. So that's what I wanted. जैसे वो creator classes जो वगैरह जो अब तो बना लिए किसी ने, उस time I wanted to make that. Get like YouTubers go and then सबको and then people enroll in your class basically and I would be, you know, मेरे platform पे आओगी. And I was like, that's something that's on a very huge scale and I won't be able to pull it off. क्योंकि मैं एक बंदा हूँ, मैं क्या करूँगी. तो फिर I like narrowed it and I was like, why don't I do it? Like I have experience and I like helping people and I'm currently helping a lot of people. So why not narrow it down and start from me? And I do plan on like expanding it at one point and get other influencers to give like छोटी classes वगैरह to students जो कि interested हैं blogging में, influencer marketing में. But I started myself, so I help small brands and how to build their Instagram, like उनकी from scratch. I analyze their blog, I spend a lot of time analyzing everything they're doing, and then I create a strategy for them. And then during the session, it's like a 1 hour Zoom session, और उसके अंदर फिर I discuss it everything, कि आगे क्या करना है, अभी क्या चीज़ ठीक करनी है, bio optimization, hashtag strategy, content strategy, everything, even motivation भी. कुछ तो like क्योंकि कुछ blogs mental होते हैं ना, तो I work on motivation as well, कि you know मसला क्या चल रहा है, तो it becomes a therapy session sometimes as well. तो apart from that I work the same thing with blogs, जो कि new bloggers हैं. On the back end I'm handling मतलब छोटे blog जो brands हैं उनकी marketing for Instagram. I don't talk about it a lot on the platform, but I'm doing it at that at the back end. That's good. So basically like you know that you've learned something, you've learned a skill, you know you have knowledge about something, so why not use it to sort of help people. But you know how like Pakistan में वो एक mentality होती है, coaching के लिए लोग पैसे नहीं देना चाहते ना, उसका क्या coaches जो Instagram coaches हैं ना वो बाहर हैं, यहाँ पे एक आध है and all of them charge so much money. Like they charge a lot of money. उनकी I think जो सबसे basic package होता है ना आधे घंटे की coaching का, that's $70. एंड पाकिस्तान में तो वो क्योंकि पाकिस्तान में 6,000 की शर्ट खरीद लेंगे, 6,000 का नॉलेज ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे वो मेंटालिटी वैसी नहीं है ना. तो आई हैड अ लॉट ऑफ, शुरू में थोड़ा मुझे मुश्किल हुई टू कन्वे टू पीपल के यू नो दिस इज समथिंग ऑफ वैल्यू एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैं सिखा रही हूँ वो शायद आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब से, और वो सारी चीज़ें बड़ी जेनेरिक चीज़ें होती हैं. क्योंकि हमने भी खुद ग्रो किया है, वी डिडंट हैव एनीवन टू आस्क फॉर हेल्प, हमने वो यूट्यूब वीडियो देख के और सब कुछ सीखने की कोशिश की है. बट जो पर्सनल एक्सपीरियंस ना, इवन यू द थिंग्स यू नो अबाउट इंस्टाग्राम आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन इट, वो शायद आपको नहीं मिलेगा. तो लेकिन ये कि इट्स अ प्रोसेस टू slowly get into it, but I like doing it, it's fun. Like I like talking to people, helping people. वो जब एक successful होता है ना तो वो फिर मुझे बड़ा rewarding है, feeling अच्छी है. I had this session with someone and she was like very motivated, very motivated, and then she had like 1,400 followers, and then after a week she was like I have 5,000 followers. Oh, and that's amazing. so happy, and she worked on my strategy. लोग बहुत से लोग ना they take some time comply to नहीं work on करते, the strategy, सुन तो लेते हैं, like बहुत आराम से काम करते हैं. तो she instantly worked on it and it worked, and I was so happy because whenever I see her work, it you makes feel proud. me happy. Yeah. It's a very rewarding thing when you see someone you mentored turn into a success. Like even if they get bigger than me, I'd be happy. That's awesome. Yeah, that's awesome. So anything else you want to share with us? So much fun. Really? Thank you. Me too. So like natural and मजे से बात हो गई. बोलने का तो शौक ही बहुत है ना मैं बोलती रहती हूँ. I'm glad. Anything else you want to say? I don't think so. I think we pretty much covered all the aspects of my life. Yeah. Did you have fun? I did have a lot of fun. It was really amazing. Thank you so much for sharing so much with us. I know like a lot of people can relate to a lot of the things that you said, can learn from a lot of the things that you said. So it means a lot that you took out the time. बहुत दूर से आप आई और आपने सारी बातें शेयर की. So thank you so much for tuning into this episode of Happy Chip with Aisha. I hope that you guys enjoyed it. I enjoyed it, and I'll see you guys another time. Bye. Bye.